Everyone, I'm making this video in order to understand the market trend. Market कहाँ पे head कर रहा है. Either we are falling or we are rising from here. तो वो सब analyze करते हैं using all of these points. First one is US indices like Nasdaq and Dow Jones, metals like gold index and silver, Bitcoin, cryptocurrency matters nowadays, Nifty, all monthly, weekly and daily charts, Bank Nifty, and then other indices like auto, energy, financial services, FMCG, infra, metal, PSU banks, reality index. So all these indices actually help us in predicting trend of the market. So there could be a sector wise rotation, so that means some of the sectors might go up, some of them may correct. So we will understand all of this in this video. This video might be lengthy, but bear with me. This is the first attempt of mine to create such a video. So we will start with first understanding the US indices. We'll first analyze the Dow Jones because it is the global index and it matters actually. If it is in bear market, entire world will be in bear market. So if you see on monthly chart, we will always go by monthly, weekly and daily basis, means time frames. So if you see on monthly, there is this clear trend which is still not broken. So it is still in bull market. So Dow Jones is still in bull market on monthly. Let's go on weekly. On weekly, if you see, this is the in Elliott wave, this is the first wave, second wave, this is the third wave, fourth correction wave. If the correction is over here, is ended here, then we are in the fifth wave, and fifth wave is the impulse wave. It has the momentum, it breaks this high very quickly, and it is where the euphoria starts in the retailers. But now, as you can see, it has paused from halted from last 4 weeks. It is in sideways mode. Okay, so there is no trend break on weekly also in Dow Jones. Let's quickly go on daily chart. Now on daily you can see, so we have a gap here. Okay, this is not filled and market has straight away moved to 42,000 43,000 level. Now what has happened, there is a small gap here also. Okay, now it might be possible that Dow may come up to here 41,000 level and it may bounce back. Okay, if it fills the gap and again starts trading below this level 41,300, expect the correction of this fourth wave is not over and Dow is falling more. Okay, but I am currently not of the opinion. Okay, so on Dow, entire trend is uptrend is maintained. Let's quickly go to Nasdaq. If you see Nasdaq chart on monthly, see, so basically after COVID, first wave, second wave, third wave, if I consider this as a fourth wave, then fifth wave is in progress. Again, fifth wave is in impulse wave and it moves very fast. So basically June month should not be like this. It should not be like a small candle, it should be a larger green candle. Okay, now if you observe carefully, it had crossed May month high, it traded for some time above it. Now it has came back to previous high of this May month.
So on monthly trend is intact, but there is a possibility of rejection. Now on weekly you can clearly see there is a gap. What happens in an uptrend? Stock moved from here, from this low to here. It made a gap. Now from past 5 weeks it hasn't filled that gap. Okay, so this could be a this is a continuation gap. This could be a continuation gap unless and until this week, as it is showing a red candle. If it has to fall, it will fall up to here. ओके 18,000 के लेवल तक आएगा वो, 19,400 से. इट्स अ बिग फॉल ऑन वीकली. इफ़ यू गो ऑन डेली पे देखोगे तो ये वो गैप है. ओके, देन from for many days it traded above that gap only, didn't feel it. अभी क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर ब्रेक जैसा दिख रहा है. इट इज़ मेकिंग, so basically every closing is above. It was shifting above. Now suddenly today's day, it's yesterday इसने ऐसे नीचे कैंडल बनाया. सो इट्स अ साइन ऑफ करेक्शन माइट हैव स्टार्टेड. ठीक है, तो नैस्डैक एंड डाउ showing some signs of starting of correction, but again, as I said on monthly, if it has to be a fifth wave, it has to go somewhere like 22,000 levels and then correct. So fifth wave अगर है बुल रन का तो ये गैप वैसे ही रहेगा, ये वाला. और ये जो डाउन ट्रेंड है, it somehow magically it has to basically again it has to move again up. Now we'll quickly go to gold index. We'll go to first cryptocurrency. Now crypto is trading at $1,04,000. इसने हाई बनाया था 1,10,000 का. ठीक है, अभी इसका मंथली एनालिसिस आप करोगे तो एक क्लियर ट्रेंड है कि इसने ये जो लेवल है 69,000 का, इट फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, एंड इट टुक अराउंड से 2021 से उसने 5-6 साल लिए टू break this high of 69 or level of 69,000. it broke above it retested it. okay, यहाँ पे एक retest है. it again made a new high. so basically ये जो मतलब ब्रेक के बाद वाला जो टॉप था उसको भी ब्रीच किया था, एंड नाउ इट इज़ स्टिल होल्डिंग नियर दिस लेवल ओनली. भले वो 10,000 या 6,000 7,000 पॉइंट नीचे है वो हाई से, बट इट इज़ स्टिल होल्डिंग. सो बिटकॉइन इज़ पॉजिटिव. और अगर हम प्रॉपर एनालाइज करें तो ये जो कप का हाइट है, ये हाइट यहाँ पे बनना चाहिए. सो बेसिकली 69,000 टू 15,000 जो भी डिफरेंस आ रहा है, समझो 70,000 से 15 गए, 55,000. सो 55,000 70 से 55 ऐड करो, 1,30,000 के अराउंड टॉप बनना चाहिए इन बिटकॉइन. सो बिटकॉइन हैज़ स्टिल मोर अपसाइड. तो बिटकॉइन तो ओके है. नाउ गोल्ड. क्विकली विल गो टू मंथली चार्ट. अरे यार, क्विकली विल गो टू मंथली चार्ट. See, gold is making a new high. Okay, when gold crossed $2,000 price value in 2024, वहाँ से लेके शूट हो रहा है. इट्स अ कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट. अभी ये हो भी क्योंकि ये बहुत टाइम से 2011 से लेके ये 2000 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ था. नाउ इट गॉट ब्रोक इन 2025.
तो ऑलमोस्ट 15 ईयर का कंसोलिडेशन टूटा, तो ये मूव आना पॉसिबल है एंड it will not take the retest. Okay, so gold will go up and up. Quickly we'll go to silver chart. See what silver is doing now. It made a high in 2011, same period as gold made a first is high at 2011. Now silver is making a cup pattern, so basically silver is trying to go at 50,000 level. Currently it is at 36,000 level, so it may take around some more time, but it will not fall from here. It will go up and up from here up to till the time it reaches 50,000 level. So basically it will complete its cup pattern, then it may correct, and then it may make an handle, and then it may shoot again, but metal is positive. Now we'll quickly go through our Nifty indices monthly, weekly and daily analysis and try to understand what it is trying to say. See, so this is my algo setup. Majority of you all know the indicators. I'll quickly go through all the indicators. So this is pivot, okay, ATR trailing stop loss are there. This gray line is 5 SMA, this green line is 20 SMA, blue line is 50 SMA, this red line is 200 SMA. That's it. RSI divergence is there, volume is there. Now if we quickly try to analyze what Nifty is doing, in COVID Nifty took bounce from 50 SMA. okay, Elliott wave की बात करें तो फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, fourth wave. Now it is trying to make fifth wave and it may move sharply. That was the expectation actually. So talking about current month analysis, so यहाँ पे ट्रैप सेट हुआ था 20 SMA से, ट्रैप सेट हुआ था. ओके, इट क्लोज बिलो 20 SMA, इट बाउंस बैक और रिगेन द 20 SMA, पिवोट क्रॉस हुआ. नाउ ये जो वाइट पिवोट है दैट इज द न्यूट्रल पॉइंट एंड दिस सो बेसिकली जून मंथ वेंट अबव मे मंथ. ओके, यहाँ पे था, वहाँ से रिजेक्शन आया. कल नहीं, कल से 2 दिन में आया. एक्चुअली दिस एंटायर अप मूव ऑफ जून मंथ got neutralized in last 2 days. So basically we are still in the fifth wave. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 25,800 का, एंड अगर सो बेसिकली इफ इट इज़ अ फिफ्थ वेव ये क्रॉस होगा, बट सेम मंथ में 26,200 भी टच हो सकता है. ओके, सो बेसिकली वी आर स्टिल इन द अप ट्रेंड ऑन मंथली. ऑन इन करंट मंथ वी हैव मेड अ डोजी. So we are not in a trend right now. We have to decide a trend. अगर यहाँ से गिरना है तो जून मंथ को गिरना होगा 5 SMA पे पहले, which is around 23,889. बट पकड़ लो एक 24,000 का लेवल, जब तक ये नीचे आएगा 5 SMA ऊपर आ जाएगा. तो 24,000 के लेवल तक हम गिर सकते हैं अगर गिरना है तो. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मंथ क्लोजिंग. ठीक है, और गिरना स्टार्ट किया तो और फिर नीचे का ट्रेंड ही स्टार्ट हो जाएगा. एंटायर फिफ्थ वेव मे गेट कैंसल्ड. अभी टॉकिंग अबाउट वीकली ट्रेंड, सो ये जो टॉप था वहाँ से करेक्ट हुआ 50 SMA बाउंस ब्रेक, वी रिगेन्ड इट. नाउ we are following 5 SMA. Every closing is above 5 SMA. See, we gapped down on tariff day, we closed above 5 SMA. Now suddenly we have closed below 5 SMA in this week. अभी क्या होगा? So weekly analysis ये बोलता है
ये जो बॉटम है 24,500 का, इसके नीचे अगर निफ्टी जाता है तो देर इज़ नो सपोर्ट, सीधा 24,134 का एक सपोर्ट है, वहाँ पे जाके क्लोजिंग मिलेगा. सो बेसिकली इफ़ वी हैव टू फॉल, वी विल क्लोज नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक समवेयर अराउंड दिस लेवल 24,000 का लेवल, इफ़ वी हैव टू फॉल. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू मी वी आर स्टिल इन अप ट्रेंड. ये वीक में हमें नीचे क्लोजिंग आया है. नाउ वी आर इन अलर्ट मोड, क्योंकि 5 SMA के नीचे क्लोजिंग आया. इट्स अ फर्स्ट साइन. इफ़ वी गेट फॉलो अप ऑन बिलो साइड तो समझ लो ख़त्म हो गया, ये अप ट्रेंड ख़त्म हो गया एंड वी विल गो डाउन बिलो. हाँ, नीचे बहुत बड़े सपोर्ट्स है. सो ये जो लेवल्स है 24,000 के अराउंड, यहाँ पे 50 SMA है, पीवोट पॉइंट है, एंड 20 SMA भी अप ट्रेंड में आ रहा है. सो 24,000 के अराउंड, और हो भी सकता है कि ये टूटा, ये ऊपर गया, 50 SMA टच किया, फिर ऊपर जा सकता है. सो अगर नीचे आना ही है तो 24,000 टच करेंगे हम. विल क्विकली गो टू डेली चार्ट. डेली पे क्या हो रहा है, सी. थोड़ा क्लटर्ड है चार्ट बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी, ये टैरिफ लो है. ओके. नाउ दिस लो, इसको करेक्शन, मतलब ये जो लो है यहाँ से लेके ऊपर ऊपर ही मूव गया है. ओके. एंड देर आर फ्यू गैप्स. तो ये गैप्स फिल नहीं हो रहे. दीज आर ब्रेक अवे गैप्स. ये जो भी है ब्रेक अवे, रन अवे, और सॉरी कंटिन्यूएशन गैप. अभी हुआ क्या है, निफ्टी मैं बोल रहा था 25 to 300 के अराउंड निफ्टी को जाना है. एज वी वर ट्रेडिंग नियर बाय 25,000 अबो. ओके. यहाँ पे गैप पकड़ के हम ऊपर ही ट्रेड कर रहे थे. ये पूरा जो जोन है रेजिस्टेंस जोन, इसके ऊपर गैप से खुले. 3 दिन ट्रेड किया, चौथे दिन फिर से नीचे आ गए. नाउ ट्रेंड रिवर्स हुआ क्या, नॉट इट, मीन्स लेट्स सी. सो बेसिकली व्हाट हैपन्स, ये जो अप ट्रेंड है ये पूरा 20 SMA के ऊपर ऊपर ही सस्टेंड है. यहाँ पे नीचे क्लोजिंग आया था बट विद इन 2 days वी रीगेन 20 SMA. अभी क्या हुआ, 25,300 के अराउंड हम जाने ही वाले थे, 266 के अराउंड, विच इज़ द R1 ऑफ पीवोट. रिजेक्शन आ गया. ओके. नाउ व्हाट हैपन, ये दिन जो जिस दिन फॉल आया था, हम 20 SMA से बाउंस लिए और 20 SMA के ऊपर ही क्लोजिंग है. बट ऑन लास्ट ट्रेडिंग डे वी हैड अ वॉर न्यूज़ एंड यहाँ पे खुले, यहाँ से बाउंस आया और क्लोजिंग यहाँ पे है. इफ़ यू सी दिस लेवल, तो एक बाउंस, 2 बाउंस, 3, और ये चौथा बाउंस है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है. 4 जगह से 4 बार बाउंस आया है इन द स्पैन ऑफ से 1.5 month. ठीक है. 4 वीक का साइडवेज मूव है एंड एवरी टाइम वी आर बाउंसिंग फ्रॉम 24,500. तो अभी क्या ट्रेंड, अभी क्या व्यू बन रहा है. सो ऑन डेली पिवोट जो लेवल था, नीचे क्लोजिंग हुई, ओपन इक्वल टू लो है, खुलते ही हम ऊपर गए, ऊपर जाके क्लोजिंग है. दिस इज़ अ मारूबोजो. ओके. अभी हो क्या रहा है, ये लेवल मतलब यहाँ से कोई रिजेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है एंड देयर इज़ अ गैप आल्सो, गैप टू फिल. तो क्या होगा अभी. सो अभी व्यू मेरा ये बन रहा है, अगर हम थोड़ा ऊपर जाके 24,800 से रिजेक्ट होते हैं, ठीक है, समहाउ इफ़ वी क्लोज बिलो दिस पीवोट 24,600, ये वाला जो पीवोट है, ये पूरा डाउनफॉल में कन्वर्ट हो सकता है. सो बेसिकली देन वी विल ब्रेक दिस 50 SMA ऑल्सो. बट यहाँ पे 200 SMA भी है. ओके. और ये 200 SMA और ये पीवोट ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं. ओके. सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,000 लेवल. सो बेसिकली हम अगर 24,800 से रिजेक्ट होते हैं बाय आई मीन बाय दिस 20 SMA,
तो ये 20 SMA अभी धीरे धीरे डाउन स्लोपिंग होना स्टार्ट हो गया है. इफ़ वी स्टे बिलो दिस 24,800 लेवल फॉर मोर दैन से 6, 7, 8 days, कंसिडर वी आर फॉलिंग. बट अगर नेक्स्ट 4-5 days में हम 24 SMA रिगेन कर रहे हैं, कंसिडर वी आर गोइंग टूवर्ड्स 25,000 to 66 लेवल क्लोजिंग सून. ठीक है, ये निफ्टी का व्यू था. इफ़ वी गो टू बैंक निफ्टी, क्विकली विल गो टू मंथली चार्ट. अभी सी इलियट वेव देखते हैं. वेव 1, वेव यहाँ से वेव 1, वेव 2, वेव 3, 4th वेव, 5th वेव. नाउ 5th वेव ने बैंक निफ्टी में ऑलरेडी प्रीवियस हाई जो ये लेवल पे बना था 2024 अक्टूबर मंथ में, शायद सितंबर मंथ, वो तोड़ दिया. नाउ वी आर स्टिल मैनेजिंग टू ट्रेड अबव दैट लेवल. ये मंथ ने हमें ब्रेकआउट दिया. ठीक है, 4th मंथ, दैट इज़ मई मंथ ऑफ 2025. सॉरी, हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मंथ. मई मंथ ने क्या किया? मई मंथ ने पिवोट भी क्रॉस किया. ओके, नाउ कंसिडर दिस. जून मंथ, सो मेरा एनालिसिस ये था, यहाँ से अभी जर्नी स्टार्ट हुआ था 59,957, कंसिडर इट एज 60,000. अभी क्या हुआ? नीचे आया था जून मंथ, ऊपर गया. 5 SMA बहुत दूर है. ओके, बट ऑन मंथली इट डजेंट मैटर कि वो 2-3-4 मंथ 5 SMA से दूर रह सकता है. तो ये इधर भी ट्रेड करेगा. सो बेसिकली आई एम कंसिडरिंग टाइम करेक्शन. पिवोट शुड बी मेंटेन्ड. इफ़ वी मेंटेन दिस प्रीवियस हाई, ये प्राइस यहाँ पे ही रहेगा 55,000 के अराउंड. सो ऑन मंथली आई एम स्टिल बुलिश ऑन इन बैंक निफ्टी. वीकली पे जाते हैं. वीकली पे भी क्या हुआ है? सी 50 SMA से बाउंस देखो, बहुत सस्टेनेबल बाउंस आते हैं इन बैंक निफ्टी. इट ब्रोक 50 SMA हियर. ओके, वी रीगेंड इट, फिर हाई तोड़ दिया, ऑल टाइम हाई. अभी क्या दिख रहा है मुझे? यहाँ पे एक गैप तो है. ठीक है, दैट इज़ सब्जेक्ट टू फिल इन द नेक्स्ट मेजर करेक्शन. तो बैंक निफ्टी ने पिवोट तो काउंकर किया था R1 वाला, ये न्यूट्रल पिवोट, दिस इज R1. 5 SMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है. नाउ सडनली एज इन निफ्टी, बैंक निफ्टी ने भी 5 SMA के नीचे क्लोजिंग दिया है फर्स्ट टाइम आफ्टर सो लॉन्ग. यहाँ पे एक दिया था बट नेक्स्ट वीक कॉन्कर किया था. सो दिस इज़ अ ट्रैप. नाउ अगले वीक अगर हम ये जो लेवल है बैंक निफ्टी का लो जो है 55,149, इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं ना, देर इज़ नो सपोर्ट. यहाँ पे देख रहे हो कुछ नहीं है. सीधा इसको बहुत नीचे आना है. बेसिकली ये 20 SMA ऊपर आ जाएगा, धीरे धीरे भी आ सकता है. सो कंसिडर 54,000 ये आ जाएगा अगर हम ये वीक का लो तोड़ते हैं. तो डेली पे आते हैं. देखो डेली पे क्या हुआ है? 200 SMA टूटा था, रिटेस्ट किया, डब्ल्यू पैटर्न बना, वी रीगेन 200 SMA हियर. 200 SMA को फिर से टैरिफ के दिन नीचे से जो भी है आके तोड़ दिया. सो बेसिकली इसको ऐसे कंसिडर करो. 200 SMA टूटा, रिटेस्ट किया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, वी रीगेन 200 SMA. तो ये एंटायर जो 200 SMA के नीचे ट्रेड किया, दैट इज़ अ ट्रैप फॉर सेलर्स. जैसे ही 200 SMA कॉन्कर हुआ, वी मूव्ड एंड मेड अ न्यू हाई. वी ट्रेडेड इन साइडवेज. 20 SMA प्रिजर्व हुआ, 20 SMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहे थे. नाउ सडनली वी हैव क्लोज बिलो 20 SMA. ठीक है, यहाँ पे ना सपोर्ट पॉइंट्स बहुत सारे हैं 55,000 के अराउंड. सो इवन इफ वी हैव टू फॉल, वी विल फॉल स्लोली इन बैंक निफ्टी. ऐसे नहीं होगा कि एक बहुत ही बड़ा डेली कैंडल बनेगा नीचे के साइड, ब्रेकिंग ऑल दिस पिवोट्स. ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 50 SMA. यहाँ पे एक 54,200 के अराउंड
एक S1 है सपोर्ट पिवोट, ऐसे नहीं होगा कि एक ही दिन में हम 54,000 के नीचे क्लोजिंग दे दे। हाँ, अगर दे रहे हैं, कंसिडर इट एज अ वेरी वेरी बैड साइन, तो पूरा मार्केट बेयर रन में जाएगा, ऐसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ। नाउ व्यू क्या बन रहा है, सिंपल है। ये जो पॉइंट था, ये जो लेवल है, यहाँ पे क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे क्रॉस नहीं किया, सो बेसिकली ये पॉइंट को ब्रेकआउट किया, ऊपर आया, नीचे आया, ये रिटेस्ट लगा था मुझे, ठीक है। मुझे लगा था यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा, बट वी आर हियर नाउ। मार्केट को, सो बैंक निफ्टी को somehow it has to cross 56,000 in coming days, इमीजिएटली करना होगा। ऐसे नहीं चलेगा कि 15-20 दिन हो गए हम 56,000 क्रॉस नहीं कर रहे हैं। सो दिस डाउन मूव जो भी हुआ है ना, इट हैज़ टू बी अ सेलर्स ट्रैप इफ़ इट हैज़ टू गो अप, मतलब फिर से एक नया, सो बेसिकली हाई टूटा फिर और ऊपर ऊपर ही जाना है, क्योंकि मंथली पे आप देख रहे हो तो हाई टूटा था, एंड दिस इज़ द, इफ़ दिस इज़ अ फिफ्थ वेव, इट हैज़ टू गो अप एंड अप। मतलब फिफ्थ वेव में ग्रीन मंथली कैंडल्स बनते हैं, तो ऐसा एक छोटा कैंडल बनने की उम्मीदें कम रहती है, बट इफ़ इट मेक्स वन, अगले मंथ के कैंडल्स फिर बड़े बड़े बनते हैं। सो बेसिकली एक ही बनेगा रेड कैंडल, सब ग्रीन बनेंगे। अगर जून मंथ क्या बोलते हैं, निगेटिव अगर क्लोज होता है तो जुलाई अगस्त सितंबर ये सब मंथ्स ग्रीन बनने चाहिए। अगर जून मंथ, और एक पॉसिबिलिटी है, अगर ये पीवट देख रहे हो 55,527, इसके नीचे, ये पीवट के नीचे अगर जून मंथ ट्रेड करना स्टार्ट करता है, समझ लो ये जो ब्रेकआउट था तो ये हो गया बायर्स ट्रैप। मतलब मई मंथ में ब्रेकआउट दिया एंड जून मंथ ने फिर वो छोड़ दिया, ये फिर बायर्स ट्रैप बनेगा, फिर इसको नीचे नीचे मूव करना है, ठीक है। फिर मैं तो कंसिडर कर रहा हूँ फिर बहुत बड़ा सेलिंग आएगा, तो फिलहाल तो पॉसिबिलिटीज़ कम ही लग रही है। तो क्विकली विल गो थ्रू अदर इंडाइसेस कि बाकी के इंडाइसेस कैसे मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल से PSU बैंक इंडेक्स, अगर मैं PSU बैंक इंडेक्स देखूँ, पूरा जूम आउट करता हूँ, ठीक है, पिवोट इंडेक्स क्लटर हटा देता हूँ मैं। सी, दिस वाज द लेवल, ये एक हाई था 2010 का, ठीक है, वो टूटा यहाँ पे 2024 में, न्यू हाई बना, रिटेस्ट हुआ, अभी रिटेस्ट होके ऊपर जा रहा है। सो बेसिकली मंथली पर, और ये 20 SMA का देख रहे हो, 20 SMA का नीचे क्लोजिंग हुआ, ठीक है, 2 ही मंथ में रिगेन हो गया। सो दिस इज़ अ सेलर्स ट्रैप, इट हैज़ टू गो अप एंड अप। अभी जून मंथ डोजी बना है, रेड डोजी, आई डोंट नो अगर ये रेड डोजी रहेगा या ऊपर भी जाएगा, बट सब्सिक्वेंट मंथ में बैंक PSU बैंक्स को ऊपर ही जाना है, ठीक है। अगर ये यहाँ से फॉल करेगा एंड समहाउ इट क्लोजेस बिलो 20 SMA, तो ये बहुत बड़ा फॉल है, मतलब ये फिर मतलब ये लो भी तोड़ देगा, ये बहुत बड़ा फॉल हो जाएगा। वीकली पे देखोगे तो, वीकली पे नहीं समझने की ज़रूरत, मंथली पे ही समझेंगे हम। अभी नेक्स्ट इंडेक्स है IT इंडेक्स। IT इंडेक्स इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लेगार्ड था, बट अगर ये सपोर्ट देगा तो निफ्टी ऊपर जा सकता है। तो अगर मैं मंथली चार्ट देखूँ IT का, IT में देखो 50 SMA पे सस्टेनेबल बाउंस आता है। लास्ट मंथ या लास्ट टू लास्ट मंथ हमने ये मंथ से बाउंस लिया था, अभी हो क्या रहा है, समहाउ वी आर अबोव 20 SMA इन जून मंथ, ठीक है। समहाउ ये जो हाई था 2022 का, वो हाई के ये यहाँ पे भी टच हुआ था, ये टूट, मतलब ब्रेकआउट हुआ, मैं इसको रिटेस्ट मानूंगा। तो क्या हो रहा है, वी आर अगेन नियरर टू दैट हाई। अगर ये ऊपर जाता है समहाउ, एंड रिजल्ट्स आर कमिंग ऑफ IT कंपनीज, प्रोबेबली वो अच्छे रिजल्ट्स है, सो लेट्स सी। अगर
उनकी रिजल्ट्स बेसिस पे ये अप मूव स्टार्ट हो रहा है तो इट विल सपोर्ट निफ्टी, ठीक है। तो वीकली पे अगर मैं देखूँ, बहुत टाइम के बाद ये जो कोविड का फॉल था यहाँ पे 2020 में 200 SMA का बाउंस लिया था। मतलब बेसिकली 200 पे आता नहीं है IT इंडेक्स, ये 50 SMA खेलता जाता है हर टाइम फ्रेम पे। समहाउ इट इज़ नाउ अगेन नियर दिस 200 इंडेक्स, इसने बाउंस किया है, ठीक है। ये 200 के बाउंस है ना, इतने जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं, ये चलते जाते क्योंकि 200 पे बहुत बड़े इन्वेस्टर एंटर करते हैं। नाउ मेटल इंडेक्स, जब मेटल इंडेक्स बढ़ता है ना तो प्रोबेबली मार्केट नीचे जाता है। सो मेटल में भी क्या हो रहा है, 20 SMA से सस्टेनेबल बाउंस लेके ऊपर जा रहा है। तो मेटल इंडेक्स तो पॉजिटिव ही है, बट देखोगे तो ये कब का उसका लॉन्ग जर्नी स्टार्ट कर चुका है। मतलब इसने 2008 का हाई तोड़ा था, कंसोलिडेशन ऑफ से 15 to 20 ईयर्स इसने ब्रेक किया, इसके बाद इसको बहुत ऊपर जाना है। सो मेटल इंडेक्स नो डाउट ये तो ऊपर ही ऊपर जाएगा। कंसिडर दिस 20 SMA वाला, यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दिया, रीगेन हुआ, उसके बाद वो 20 SMA ऊपर ऊपर ही क्लोज करते जा रहे हैं। सो मेटल इंडेक्स इज़ पॉजिटिव। IT इंडेक्स इज हैज़ बॉटम आउट और से इट इज़ ट्राइंग टू ब्रेक द प्रीवियस हाई दैट इट मेड आफ्टर कोविड रैली, ठीक है। इसके बाद हमें समझना चाहिए इंफ्रा इंडेक्स, सॉरी रियलिटी इंडेक्स। क्यों? क्योंकि रियलिटी में अगर हाउस परचेसेस हो रहे हैं एंड रियलिटी कंपनीज आर गेटिंग बेनिफिटेड, तो लोगों के पास पैसा है, रिटेलर्स के पास, और से नॉट रिटेलर्स, HNIs के पास। सी ये जो रियलिटी इंडेक्स है 2008 में पिक कर गया था, उसके बाद उसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। कब बना रहा है ये यहाँ तक का? तो इसको बहुत ऊपर जाना है, ये यहाँ पे नहीं रुकेगा। ये जो एक लेग है करेक्शन लेग, देन इट शुड मेक अ न्यू लेग अप टू हियर, यहाँ तक ये जो भी प्रीवियस हाई था। तो इसको बहुत ऊपर जाना है अभी तक, फिर ये कब बनाएगा, फिर ब्रेकआउट देगा। सो बेसिकली ऑब्वियसली एंड DL जो भी है, हाउसिंग कंपनीज रिकॉर्ड सेल्स कर रहे हैं। मुंबई में हाउस परचेसेस रिकॉर्ड लेवल्स पर है। एवरी प्रोजेक्ट इज़ गेटिंग, लग्जरी प्रोजेक्ट इज़ गेटिंग सोल्ड विद इन अ लॉन्च ऑफ 1 मंथ, ठीक है। सो बेसिकली रियलिटी इंडेक्स का, और एक बात, 20 SMA से ये देख रहे हो नीचे क्लोजिंग दिया, रिगेंड इन से 3 मंथ्स, अभी जून को ऊपर ही जाएगा। सो बेसिकली अगर ये नीचे आता है तो ये 20 SMA को रिजेक्ट होके नीचे जाएगा। सो बेसिकली रियलिटी इंडेक्स अगेन विल गो इनटू टेस्टिंग दिस लेवल, ये जो प्रीवियस वाला हाई था, तो इसको और आधा होना पड़ेगा, ठीक है। वो जो मुझे लग नहीं रहा है करंटली, हाईली अनलाइकली लग रहा है। अब आते हैं मिड कैप इंडेक्स पे, क्योंकि मिड कैप सबके पोर्टफोलियो में है। देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। हाँ सी, ये इंडेक्स भी कोविड में 50 SMA तोड़ा ऊपर, फिर 20 SMA से बाउंस लेके नाउ यहाँ पे एक 20 SMA का बाउंस था, यहाँ पे 20 SMA का बाउंस है। इनफ पीरियड है, ठीक है। नीचे क्लोजिंग दिया, रिगेन किया, सो दिस इज़ अ सेलर्स ट्रैप। 1 2 3 मंथ हो गए, इट इज़ होल्डिंग 20 SMA बुलिश। नाउ ध्यान से देखना, ये हाई था, ये जो है ना, ये लेवल इसने हाई टच किया था जून में, वहाँ से रिजेक्ट हुआ है ऐसे लग रहा है, ठीक है। हो भी सकता है। अभी प्रॉब्लम ये है, इट इज़ स्टिल होल्डिंग अबव प्रीवियस मंथ हाई, ये वाला मंथ का। चलो वीकली पे देखते हैं इसको। सो बेसिकली
मंथली पे ये रिजेक्शन दिखा रहा है बट द कैंडल इज स्टिल ग्रीन, तो बुलिशनेस तो है अभी तक, इतना भी सेलिंग नहीं आया है कि हम बेयर ट्रेंड मान लें। वीकली पे जाते हैं, 50 SMA को तोड़ा था, 50 SMA रिगेन किया, इतना बड़ा टाइम सेलर्स ट्रैप बना, जिन्होंने भी सेल किया वो ट्रैप हो गया। उसके बाद वो 4-5 वीक ऊपर ही है। नाउ कंसिडर दिस, ये जो लेवल था ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर एक क्लोजिंग दिया, फिर उसके बाद नीचे क्लोजिंग। सो बेसिकली ये जो लेवल है 13,000 का, ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। समहाउ इट क्लोज बिलो 13,000 लेवल, 12,990 का क्लोजिंग आया है। डेली पे देखते क्या हो रहा है। डेली पे मैं ये देख रहा हूँ, हाँ सी, डेली पे दिस 200 SMA 50 SMA इनका क्रॉस ओवर हो रहा है, होगा मतलब इट्स कॉल्ड गोल्डन क्रॉस ओवर। और ये जब भी होता है चांसेस आर देयर कि प्राइस ऊपर ही ऊपर जाएगा, दैट्स 90% साइन ऑफ बुलिशनेस। बट अभी क्या हो रहा है, क्रॉस ओवर होने जा रहा है बट प्राइस करेक्ट हो रहा है। बट प्राइस क्यों करेक्ट हो रहा है, क्योंकि जब 200 SMA गैप से टूटा, ठीक है, उसके बाद कुछ भी रिटेस्ट नहीं हुआ है, ना 20 SMA, ना 200 SMA, ना 50 SMA, ठीक है, तो थोड़ा कूल ऑफ होना चाहिए। अभी क्या हुआ, 20 SMA टच हुआ है फर्स्ट टाइम, ठीक है, वहाँ से भी बाउंस आया। जब तक 12,800 प्रोटेक्टेड है मिड कैप में, कुछ बेचो मत अभी तक। जैसे ही, और मतलब बेचो मत नहीं, होल्ड करो, हॉल्ट कर दो सब बाइंग। क्या हो सकता है, जब नीचे आएगा प्राइस, मे बी 50 SMA से बाउंस ले ले, मे बी उसको भी तोड़ा तो 200 SMA से बाउंस आए। क्योंकि जब कोई भी इंडिकेटर टूटता है, ठीक है, तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ओके, तो नीचे 50 SMA 200 SMA दोनों सपोर्ट अवेलेबल है। नाउ रिलायंस को देखते हैं थोड़ा, रिलायंस में क्या हो रहा है देखो। मतलब मेरा निफ्टी का भी वो अभी भी बुलिश है, क्योंकि कोविड में सी रिलायंस इज़ द स्टॉक विच बैरली टचेस 50 SMA, ये 20 SMA से बाउंस लेके जाता है। बेसिकली ये 20 SMA के ऊपर ट्रेड करते करते ऊपर जाता है। दिस आर एक्चुअली ब्लू चिप स्टॉक्स, तो इनका बिहेवियर, इनका मतलब इसका HDFC बैंक, ITC सबका बिहेवियर 20 SMA से ऊपर ट्रेड करने का होता है। 50 SMA जब भी आते हैं, ये 200 पे कभी नहीं आते ही नहीं है, मतलब मंथली पर। 50 SMA पे जब भी आते हैं, इनमें बड़ा पैसा घुसता है, ठीक है। तो समहाउ आई फील कि रिलायंस में 1200 के लेवल पे 3 से 4 महीने पहले बहुत बड़ा पैसा घुसा है। मुझे नहीं पता किसने डाला है, बट समहाउ आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि नीचे क्लोजिंग हुआ, रीगेन हुआ, सेलर स्ट्रैप सेट हुआ, फॉलोअप भी मिला, 20 SMA के ऊपर अब ट्रेड कर रहे हैं। तो रिलायंस फॉल होने के चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। HDFC बैंक देखो, इसमें क्या हो रहा है, कोविड का फॉल, ठीक है, यहाँ पे 50 SMA, फिर ये कुछ महीने पहले 50 SMA का बाउंस, इसके बाद इसने ये जो लेवल था 1700 के अराउंड, ये इसका लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस था, एक साल का रेजिस्टेंस था, तोड़ा, रिटेस्ट, इट वेंट अबो दिस स्विंग हाई, तो इसको और ऊपर जाना है। बट करेंटली ये थोड़ा 2 महीने साइडवेज है, छोटे कैंडल से। डेली पे अगर आते हैं, देखो 200 SMA का बाउंस, 50 SMA से रिजेक्शन, 200 SMA 50 के बीच में खेला, तोड़ा, ये जो है गोल्डन क्रॉसओवर, नीचे आया, फिर गोल्डन क्रॉसओवर हुआ। अभी क्या हो रहा है, इसने 20 SMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, ठीक है,
अभी ये 50 SMA की तरफ आया है। सो बेसिकली 900 का जो लेवल है HDFC बैंक का, तो ये लेवल टूटना नहीं चाहिए। 1900 के नीचे अगर HDFC बैंक क्लोज होता है एंड नेक्स्ट डे फॉलो अप आता है, देयर इज़ अ बिग फॉल, तो फिर से डेली 200 मतलब नीचे जा सकता है। और वीकली पे मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे एक गैप है, तो ये गैप फिल करने वो आएगा ही 1800। सो बेसिकली अगर यहाँ आएगा तो थोड़ा ख़त्म हो गया ये अब ट्रेंड, फिर बायर स्ट्रैप बन जाएगा। सो बेसिकली जो करंट लेवल है वीकली का भी आप देखोगे 5 SMA के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा था, सडनली ये वीक में नीचे क्लोजिंग है। सो बेसिकली मैं क्या देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं। एक मिनट और एक दो स्टॉक्स बताता हूँ। बजाज फाइनेंस, NBFC रह गया, यहाँ पे देखना NBFC बहुत टाइम से साइडवेज थे, मतलब रैली हुआ 3 साल से वो साइडवेज थे, तोड़ा हाई। नाउ ये हाई टूटने के बाद एक रिटेस्ट आ सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 2006-7 साल का कंसोलिडेशन है, इसका इतना अपमूव नहीं होगा, इसका और बड़ा अपमूव होना चाहिए, फिर रिटेस्ट आएगा, फिर ऊपर जा सकता है। बट करेंटली यहाँ से रिजेक्शन मुझे हाईली अनलाइकली लग रहा है, क्योंकि अभी भी वो 5 SMA के ऊपर ही है मंथली क्लोजिंग। वीकली पे मैं अगर देखूँ तो 5 SMA के ऊपर ही वो ट्रेड कर रहा है। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे एक ही है कि बहुत टाइम से 20 SMA टच नहीं हुआ है, सो इट हैज़ टू गो साइडवेज। 20 SMA ऊपर आएगा, ये एक पॉसिबिलिटी है, और इट हैज़ टू करेक्ट, ठीक है। डेली पे मैं अगर देखता हूँ, सी 50 SMA का एक बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस, अभी चौथी बार वो आया ना 9000 लेवल के अराउंड। बजाज फाइनेंस ये लेवल तोड़ देगा नीचे की तरफ। सो बेसिकली डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। फिर ये डाउन ट्रेंड मीन्स वही है कि ये फिर से ये हाई को रिटेस्ट करेगा, ये जो 7900 या 8000 का जो हाई था, ठीक है। इसके बाद आते हैं TCS। TCS में क्या हो रहा है, ये सब मैमथ स्टॉक्स है, ठीक है, कभी आते नहीं हैं ऑन मंथली 50 SMA। कोविड में आया था, ये मंथ में TCS है 50 SMA। अक्यूमुलेशन होगा यहाँ पे बड़े लोगों का, ठीक है। अगर ये 50 SMA के नीचे देखो फॉलोअप नहीं आया, सो बेसिकली दिस मंथ क्लोज बिलो 50 SMA एंड नो मंथ हैज़ क्लोज बिलो दिस लो, जो भी क्रॉस किया कैंडल उसके लो के नीचे। जून मंथ अभी नीचे ट्रेड कर रहा है, बट इट हैज़ंट गिवन अ क्लोजिंग। सो और ये डोजी है। सो सिंपली अगर TCS जो करंट लेवल है उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, वीकली पे देखते हैं। बेसिकली वीकली पे क्या हो रहा है, कोविड में 200 SMA वीकली टच किया था, ये सीधा तोड़ दिया उसने, ठीक है, आया और तोड़ दिया। नॉर्मली कभी ऐसे डायरेक्ट टूटता नहीं है, एक बाउंस आता है फिर टूटता है, बट इसने तोड़ दिया, मतलब ऊपर से फॉलो डायरेक्ट तोड़ा है। तो हाईली अनलाइकली होता है ये बिहेवियर, बट नाउ कंसिडर दिस। यहाँ से फिर एक डाउन मूव आया ऑन वीकली बेसिस, रिटेस्ट हुआ 200 SMA, ठीक है, वहाँ से भी रिजेक्शन दिख रहा है। बट जब से फॉल हुआ है ना, तब से 20 SMA टच नहीं हुआ है बहुत टाइम से, ठीक है। तो ये अपसाइड जाना चाहिए, 5 SMA भी क्रॉस नहीं हुआ है, तो अभी तक ये प्रॉपर अप ट्रेंड में है ही नहीं ऑन वीकली। डेली पे आते हैं, डेली पे इसने क्या किया एक्चुअली, अगर मैं ट्रेंड रिवर्सल देखूँ तो छोटे टाइम फ्रेम से ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट होता है। तो ऑन डेली मुझे फर्स्ट साइन मिला है कि मतलब देखो डाउनफॉल में था TCS, 20 SMA से रिजेक्शन, फिर वो 20 को रीगेन किया, 50 को रीगेन किया, 50 के ऊपर ट्रेड किया कुछ दिन, 50 को ब्रेक किया, 50 के ऊपर आ गया। नाउ ये जो मूव है ना, इसको फिर से इसने 50 ब्रेक किया था यहाँ पे ये कैंडल में, ऑन द नेक्स्ट डे इट रीगेंड इट।
मेरे हिसाब से ये पूरा जो मूव है दैट इज़ सेलर स्ट्रैप। मतलब इसको अभी 50 के ऊपर ही ट्रेड करना है। इट इज़ ट्राइंग टू मेक द ट्रेड चेंज ऑन डेली। उसके बाद वो वीकली पे रिफ्लेक्ट होगा। बेसिकली नेक्स्ट वीक से मेरा पूरा फोकस आईटी पे रहेगा, क्योंकि आईटी ने ट्रेंड रिवर्सल के फर्स्ट साइन देना स्टार्ट किया है। वॉर की वजह से फिर से नीचे आता है, नो डाउट सब नीचे चला जाएगा, ये फिर ये और नीचे आएगा। ठीक है, इन्फोसिस को एक बार देख लेते हैं मंथली पर 50 SMA पे। ये इन्वेस्टर लेवल्स है, ठीक है, बड़ा पैसा आएगा यहाँ पे स्टॉक के अंदर। तो स्टॉक यहाँ से एक तो ऊपर जाना चाहिए या तो यहाँ से फॉल होना चाहिए। ओके, अभी इन्फी ने 2 मंथ 50 SMA के नीचे ट्रेड किया है और जून मंथ में क्रॉस किया है, क्लोजिंग नहीं दी है। बट अगर ये 1600 या जो भी है, ये कौन सा लेवल है 50,088, 1600 पकड़ लो, 1600 के ऊपर अगर जून मंथ का क्लोजिंग मिलता है इन्फोसिस में, कंसिडर आईटी हैज़ बॉटम्ड आउट। अगर आईटी बॉटम्ड आउट है, निफ्टी को वो सपोर्ट देगा। तो जो प्रेडिकेट है निफ्टी ऊपर जाएगा कि नहीं, तो यस, निफ्टी ऊपर जा सकता है प्रोवाइडेड आईटी बॉटम्स आउट, पीएसयू बैंक्स बॉटम्स आउट। ठीक है, पीएसयू बैंक्स का इंडेक्स शायद मैंने नहीं बताया ना डेली पर। सी गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका है, 200 SMA तोड़ा, 200 SMA से रिजेक्शन, बहुत टाइम नीचे ट्रेड किया, 200 SMA रीगेंड। एक पॉसिबिलिटी है पीएसयू बैंक्स आर बॉटम्ड आउट। वीकली पे अगर, मंथली पे अगर मैं देखूँ तो मैंने ऑलरेडी बोला ये एक लेग है करेक्शन, पोल फ्लैग। तो ये फिर से कंटिन्यूएशन इसका होना चाहिए आइडियली। कुछ बैंक स्टॉक्स देखते हैं, जैसे कि कैनरा बैंक। ये स्टॉक का ये वाला एक हाई है, ओके, 2010 में बना था। अभी इसने क्या किया, ये जो लेवल है 23 का, 23 बोलो या 30 के अराउंड, एक अपमूव करेक्शन। नाउ दिस पोल फ्लैग इट शुड कंटिन्यू अप टू हियर, जो भी है। मेरे हिसाब से ये अपमूव स्टार्ट हो गया इन कैनरा बैंक। डेली पे अगर आते हैं, ऑब्वियसली 20 SMA इंटैक्ट है। जब तक ये सब लोगों का, HDFC बैंक का भी एक बार देख लेते हैं। हाँ सर, ये देख लें, SBI, ओके, 20 SMA का नीचे क्लोजिंग रीगेंड, वी आर स्टिल होल्डिंग 20 SMA, पॉजिटिव ही है अभी तक। कौन सा, हाँ IDFC फर्स्ट बैंक एक है, इसमें देखो क्या हो रहा है। हाँ, सी दिस लेवल, एक रिजेक्शन, 2 यहाँ से भी रिजेक्ट हुआ, ऊपर ही नहीं आने दिया, 4th ये लेवल टूटा, ठीक है, ऊपर। नाउ इट हैड कम टू रिटेस्ट, बट ये और नीचे चला गया, 50 SMA से बाउंस आया, ठीक है। 50 SMA 2 महीना ट्रेड किया, फॉलोअप भी मिला था, बट नेक्स्ट मंथ इसने रिगेन किया। उसके बाद अभी 20 SMA का छोटा सा रिजेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। देखने की बात यह है कि 72 के ऊपर का क्लोजिंग आ रहा है कि नहीं, वरना है नीचे आ सकता है और, ठीक है। अगर मैं डेली पे जाऊँ, देखो क्या हो रहा है, 200 SMA क्रॉस हुआ है, गोल्डन क्रॉसओवर भी दिख रहा है, स्टॉक 20 SMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है अभी भी। PNB को एक बार देख लेते हैं,
गोल्डन क्रॉसओवर होने वाला है, स्टॉक 20 SMA के ऊपर ही है अभी भी। सो कंक्लूजन सिंपल है, अगर निफ्टी ये जो लो है 24,400 का ये तोड़ता है तो 24,000 पे हमें प्राइस एक्शन देखनी होगी। अगर 24,000 का लेवल भी टूट जाता है ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस, कंसिडर वी आर फॉलिंग मोर। सो बेसिकली ये सब गैप से ये फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो बेसिकली हम 200 SMA के नीचे ही ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। जब तक हम अभी भी 50 SMA के ऊपर है, मैं अभी भी बुलिश हूँ। वीकली पर देखें तो ये स्विंग पोजीशंस के लिए है। सो करंट वीक ने थोड़ा अलर्ट सिचुएशन लाया है, बट समहाउ इफ़ वी स्टार्ट ट्रेडिंग बिलो 24,500, ख़त्म कर दो लॉन्ग्स, सब ख़त्म कर दो, कुछ होल्ड कैरी मत करना लॉन्ग्स। सो 24,000 तक पैनिक क्रिएट किया जाएगा। मे बी हो सकता है वॉर सिचुएशन में हम 24,000 टच भी कर दे, बट देखने वाली बात ये है कि जब ऐसे कैंडल्स बनते हैं ना, गैप डाउन ओपनिंग एंड ओपन इक्वल टू लो और ऊपर क्लोजिंग मारूबुजू टाइप सेम हुआ था टैरिफ के टाइम पे, ये सब है ना लोज की तरह एक्ट करते हैं। एक इंटरेस्टिंग और एक चार्ट दिखाता हूँ इंडिगो का। ठीक है, ठीक है, एविएशन सेक्टर इज़ गोइंग अप एंड अप, बट अभी प्रॉब्लम एविएशन का क्या है, 20 SMA बहुत टाइम से टच नहीं हुआ है। सो इट हैज़ टू टाइम करेक्ट इटसेल्फ एंड टच 20 SMA समहाउ। वीकली पे अगर देखोगे तो 50 SMA का बाउंस है। हाँ, अभी डेली पे क्या हुआ है, इट क्लोज बिलो 50 SMA, चांसेस आर देयर कि ये जो कैंडल है इसका लो अगर ब्रेक होता है तो ये नीचे चला जाएगा। बेसिकली इट विल टच 20 SMA ऑन मंथली, मतलब ये ऊपर आएगा तब तक ये साइडवेज जैसे धीरे धीरे नीचे आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सो सिंपल एनालिसिस इज हम वी आर स्टिल इन द 5th वेव ऑफ इलियट। ये भले जून मंथ डोजी बने, in coming 1 2 3 4 months we have to touch the previous high of 26,000। तो ये मेरा व्यू है। लेट्स सी अभी डेली पर जो 24,000 या जो भी है तो 500 का लेवल है, इसके बाद स्विंग्स कैरी करना बंद, लॉन्ग्स कैरी करना बंद करना होगा, जो भी है इंट्राडे खेलना होगा, एंड दैट टू इन पुट पोजीशंस नॉट इन लॉन्ग पोजीशंस। उसके बाद ये गोल्डन क्रॉसओवर एक, दिस इज़ द ओनली होप आई हैव कि ये करेक्शन फिर से ऊपर जाएगा। ओके, बट इट हैज़ टू रिगेन 20 SMA इमीजिएटली विद इन से 2 3 4 डेज, वरना सब सेल ऑफ स्टार्ट हो सकता है। ये सेम फॉर वीकली कि ये जो जोन है 24,000 का, विद इन कमिंग 2 वीक्स 3 वीक्स 24,000 ब्रीच होके क्लोजिंग मिलता है, we will go in deep correction, like up to 20,000 तक भी जा सकता है ये करेक्शन, क्योंकि 50 SMA से रिजेक्शन होना मतलब 200 SMA की तरफ जाना है। ओके, सो दैट इज़ माय ओवरऑल व्यू। थोड़ा लंबा बना है वीडियो, 54 मिनट्स का। चलो, थैंक यू।